Hello everyone. In this video of today, we will start a new chapter of our past third book under chapter 11. And chapter name is The Making of the National Movement 1870s to 1947. मीन्स इसका मतलब होता है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक. So let's start this video. First I will explain this chapter introduction part, and this chapter deals with the emergence of nationalism. The nationalist consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850s, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. You will read about the role of Congress in the freedom struggle, how the First and Second World War impacted the Indian freedom struggle, discussion on how the struggle took the form of satyagraha and uh, agitation, Mahatma Gandhi's involvement in the struggle and the Dandi March is also discussed in previous chapter, and this video is first part of chapter 11, and we read topic about in this video emergence of nationalism means राष्ट्रवाद का उदय. So let's start first part of this chapter in this video. Emergence of nationalism. एमरजेंस का मतलब होता है उदय और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्रीयता की भावना का उदय किस तरीके से हुआ, आगे इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. सो द क्वेश्चन एंड सच मेंशन्ड अबव मेड इंडियंस थिंक अबाउट द सॉल्यूशन. द आंसर दैट दे केम अप with was that India was a country of the people of India, and people here included everyone irrespective of class, color, caste, creed, language, or gender according to them. The resources and systems were for the Indians. This led to the awarenesses that the resources which were meant for the people were being used by the Britishers, and they were also controlling the lives of Indians. मीन्स जो भी बदलाव हो रहे थे उसे लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया कि यह देश क्या है और किसके लिए है. इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी जो क्लास है, कलर है, कास्ट है, क्रीड है, लैंग्वेज और जेंडर, इसके अकॉर्डिंग सभी लोगों का ये घर है. यह देश और इसके सारे रिसोर्सेस और इसकी सारी जो अरेंजमेंट है उन सभी के लिए है. इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि जो ब्रिटिशर्स है इंडिया के रिसोर्सेस और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह कंट्रोल ख़त्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का है और भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता. इस तरीके की राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर आना स्टार्ट हुआ कि जब तक अंग्रेज़ों का कंट्रोल जो यहाँ भारत पे है उसे अगर ख़त्म नहीं किया गया, उस कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया गया, तो भारत के लोगों के लिए यह भारत नहीं हो सकता. अंग्रेज़ों का ही कब्जा रहेगा और अंग्रेज़ ही शासन करेंगे. This awareness resulted in the formation of political associations formed after 1850, especially those that came up in the 1870s and 1880s. These associations were generally led by English educated professionals, let's say lawyers. The more prominent ones were the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course द इंडियन नेशनल कांग्रेस. यह जो चेतना थी, यह जो अवेयरनेस थी, 1850 के बाद बने जो
पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनमें साफ साफ दिखाई देने लगी। और 1870 और 1880 के दशक में बने जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे इनमें यह चेतना और भी गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर एसोसिएशन की बागडोर एडवोकेट आदि जो थे और जो इंग्लिश एजुकेटेड जो पेशेवर थे उनके हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के कुछ प्रमुख पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। As the name suggests, Pune Sarvajanik Sabha was meant for the people. The word Sarvajanik means of or for all the people. These associations worked in a specific part of the country. However, their goal was stated as the goal of the entire country. They worked with the idea that people are sovereign. Their aim was that Indians should be empowered to take decisions regarding their affairs. पूना सार्वजनिक सभा नाम जैसा कि समझ से आ रहा है, इसे ध्यान से देखें तो सार्वजनिक का मीन्स होता है, सार्वजनिक मीन्स होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व मीन्स सभी और जनिक मीन्स लोगों का। सो इस प्रकार सार्वजनिक का मतलब हुआ सभी लोगों का या सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे जो एसोसिएशन थे देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने जो गोल हैं, लक्ष्य हैं, उनको भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके गोल जो लक्ष्य थे किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग जो है उस सोवरेन या संप्रभु जिन्हें कहा जाता है हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। संप्रभु मीन्स सोवरेन मीन्स होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। तो ये जो संप्रभुता है ये एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। The discontent against the Britishers grew stronger during the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, which disallowed Indians to keep arms, and not only this, the Vernacular Press Act was also passed, due to which journalists could publish only that news which was not against Britishers or their policies. It also allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses. In 1883, an outcry was seen over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill allowed the trial of British or European persons by Indians and also sought equality between British and Indian judges in the country. But when the whites opposed this bill, it made Indians angry, as this event highlighted the racism against the Indians by the Britishers. 1870 के और 1880 के दशक में जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष था वो और भी ज़्यादा गहरा होने लगा। और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। जो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन को अपने पास किसी भी तरीके का हथियार रखने का अधिकार नहीं था। और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जिसमें सरकार इस एक्ट में ये था कि सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और 1880 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया कि जो इंडियन जज हैं इंडियन जज ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि
भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा विरोध किया, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हुए और इस घटना से भारत में अंग्रेजों की असली रवैये का पता चला था। So we can say that there was a dire need for an all India organization of educated Indians since 1880, but the controversy created by the Ilbert Bill depended this desire. So in 1885, 72 delegates from all over the country met at Bombay, thus forming an association now as the Indian National Congress. The early leadership of Dada Bhai Nauroji, Firoz Shah Mehta, Baruddin Tayyab, W.C. Banerjee, Surendra Nath Banerjee, Romesh Chandra Dutt, S. Subramania Iyer were largely from Bombay and Calcutta. यहाँ यह बताया गया कि पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, बट जो इल्बर्ट बिल था इसकी चाह को और इस जो अखिल भारतीय संगठन की जो ज़रूरत थी इसकी जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इल्बर्ट बिल के विधेयक का विरोध होने के बाद जो अखिल भारतीय संगठन की चाह थी इसको और भी ज़्यादा गहरा कर दिया और 1885 में देश भर में 72 डेलीगेट्स मीन्स प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोग भी थे जो कि ये प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। और नौरोजी जो थे, नौरोजी वॉज अ बिजनेसमैन and publicist who was settled in London and was also a member of the British Parliament. So he guided the younger nationalists. Retired British officers also played an important role in bringing Indians together. और जो नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, ये एक व्यवसायी और प्रचारक थे और वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया था और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम जो हैं उन्होंने भी ब्रिटिश मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। Such associations brought the feeling of one nation among all the Indians. Next, in this chapter, we will study a nation in the making, means उभरता हुआ राष्ट्र. Congress in its initial years was moderate in its objectives. During this period, it demanded participation of Indians in the government and in administration. It demanded more powers and more representation in the legislative council and also its introduction in previous where it did not exist. जो नेशन इन द मेकिंग मीन्स जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा था या उभरता हुआ राष्ट्र था, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य के तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी और इस दौरान अंग्रेजों ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। इस काम के लिए उनसे मांग की गई कि सिविल कांग्रेस चाहती थी, उनसे मांग किया गया गठन की जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए और कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं और इस काम के लिए उनसे मांग की गई कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। They also demanded
Indianization of various departments, us Britishers did not allow Indians to hold important posts. So this way was a way to control the drain of wealth to England, which was due to the British officers who were sending salaries back at home in England. Some other demands include separation of the judiciary from the executive, the repeal of Arms Act, and Vernacular Press Act in order to gain freedom of speech and expression. शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां जो थी वो गोरे अफसर का ही कब्जा हुआ करता था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं को वो इम्पोर्टेंट पोस्ट जो थे वो इम्पॉर्टेंट जो भी पोस्ट हुआ करते थे जॉब्स वगैरह में, वो केवल गोरे लोगों या अंग्रेज़ों को ही मिलता था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का बड़ा हिस्सा जो था वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। इसलिए उन लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वह दी जाए। Congress also raised many economic issues. It declared that British rule had brought poverty into the country. The high amount of land tax was against the jamidars and peasants. Export of grain created shortage of food supplies in the country, and they also demanded reduction in military expenditure and asked Britishers to use money for irrigation purpose. Not only this, it passed resolutions on salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and also against the forest laws which had affected tribals. So we can say that the Congress, being an association of the educated class, was not talking only on the behalf of the rich, but they were concerned about the poor also. शुरुआत सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। इनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं और उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं और बढ़ते लगान के कारण जो भी हाई अमाउंट ऑफ टैक्स, लैंड टैक्स है, इसके कारण जो पीसेंट्स हैं और काश्तकार हैं, जमींदार हैं, ये सब विपन्न हो गए थे और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का जो था वो अकाल पड़ रहा था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उन्होंने जो सॉल्ट टैक्स था, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले जो वन प्रशासन थे, वजह से वनवासियों की जो बढ़ती हुई मुसीबत थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग जो थे वो वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी, मीन्स वो सभी के लिए बोल रही थी। The moderate leaders wanted to create awareness among the public. For this, they started writing articles, published newspapers to show how British rule had led to the decline of our economy. They started sending representatives to various parts of the country to create awarenesses among the public in order to express their demand in front of the Britishers. मध्यम मार्गी जो नेता थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे।
उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भेजा। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, मीन्स स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाय द 1890s, Indians began to criticize the method of Congress. Bipin Chandra Pal in Bengal, Bal Gangadhar Tilak in Maharashtra, and Lala Lajpat Rai in Punjab were more radical in their methods and were against the politics of prayers of the Congress. जो 1890s के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। They argued that we must realize our own strengths and should fight for Swaraj. We are not supposed to rely on the good intentions of the government. Tilak recited a slogan, "Freedom is my birthright and I shall have it." उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर बहुत ज़्यादा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, मीन्स फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। In 1905, the partition of Bengal took place under the viceroyalty of Lord Curzon. They gave the reason of political convenience, but in reality, Bengal was partitioned in a way to curb down the influence of Bengali leaders as Bihar and parts of Odisha were separated from Bengal. Even East Bengal was merged with Assam, leading to the formation of non-Bengalis area. The partition of Bengal was criticized all over India. Both moderate and radical sections of the Congress opposed it. Demonstrations were carried out against the partitions. The struggle came to be known as the Swadeshi movement. In 1905 में वायसराय जो कर्जन थे उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया और उस वक्त बंगाल जो था ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रांत था और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था प्रशासकीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। पर इन प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका जो ताल्लुक है अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाके जो भी थे उनको अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर बंगाली राजनेताओं का जो प्रभाव था बढ़ रहा था उस पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को डिवाइड कर दिया जाए, उनमें बंटवारा या उनमें फूट डाल दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर
जो थी वो फैल गई और मध्य जो रेडिकल्स थे और मॉडरेट थे ये इनमें कांग्रेसों के सभी धड़ों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और बहुत सारे जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह जो आंदोलन था इसमें सबसे ताकतवर था, पर इस अन्य इलाकों में भी इसकी बहुत भारी जो इफ़ेक्ट था वो दिखाई दिया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे जो स्वदेशी मूवमेंट था इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। The Swadeshi movement not only opposed the British rule but also encouraged the ideas of Swadeshi enterprise in national education and use of Indian languages. To make it more influential, the radicals began to suggest a boycott of British institutions and revolutionary violence to overthrow British rule. स्वदेशी आंदोलन जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। In the beginning of 20th century, Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim Leagues at Decca in 1906. The league was in favor of partition of Bengal. They demanded separate electorates for Muslims, a demand that was considered by the government in 1909. Some seats in the council were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. जो 20वीं शताब्दी है, 20th सेंचुरी की बिगनिंग में, स्टार्टिंग में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। जैसे 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल का विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली। अब परिषदों की कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। Some changes were seen in Congress also as it split in the year 1907. The moderates were not in the favor of boycott as it involved the use of force. Later on, it reunited in 1915. In 1916, Lucknow Pact was signed between Muslim League and Congress, and a decision was taken to work together for a representative government in the country. 1907 में कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो गई या टूट गई। मध्यम मार्गी जो मीन्स मॉडरेट जो थे उनका बहिष्कार की राजनीति के उनका जो भाग था, मॉडरेट वन नॉट इन द फेवर ऑफ बॉयकॉट इन एज इट इन्वॉल्व्ड द यूज ऑफ फोर्स। वो इसका मतलब जो मॉडरेट थे वो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध थे। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर जो मॉडरेट थे उनका दबदबा बन गया, जबकि तिलक के जो अनुयायी थे बाहर से काम करने लगे। और दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। आफ्टर दिस द स्ट्रगल स्टार्टेड growing stronger, which made it a mass movement. So let's discuss about our next video, means second part of this chapter.
Thank you for watching.